Yeah, good morning and very sorry for the delay. सुप्रभात और देरी के लिए माफी चाहते हैं। Um, let's begin with a word of prayer. If someone can please lead us in prayer and commit the class into the Lord's hands. और प्रार्थना से आरंभ करेंगे। कोई भी प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। Almighty Heavenly Father Jesus Christ, thank you for giving us this wonderful day. Lord, lead us, guide us, open our minds and hearts, Father. Lord, we pray for our pastors. We also pray for our students here on the campus and also online. Lord, open our hearts and minds. Lead us through it. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you. So, your first assessment, your midterm assessment will be posted on October 4th. और अक्टूबर 4 तारीख को आपकी पहली परीक्षा होगी। So, it will be put in the Google Classroom on October 4th. और अंग्रेजी माध्यम के लिए गूगल क्लासरूम पर 4 अक्टूबर को डाल दिया जाएगा। हिंदी माध्यम को भी 4 अक्टूबर को दे दिया जाएगा। And then your submission will be on November 27th or November 28th. और नवंबर 27 और 28 तारीख तक आप जो है अपनी परीक्षा का जो भी आप लेखा जोखा लिखेंगे आप उसे जमा कर सकते हैं। So which means you almost have 2 months to do the midterm assessment. और इसका मतलब होता है आप लेट कर तो के अंदर अपना परीक्षा पूरी कर सकते हैं। So please don't copy from each other. Try to find out the answers on your own. और इतना समय मिलने के बाद भी नकल करने का प्रयास कतई मत करिएगा, अपने आप लिखने का प्रयास करिएगा। So look at the video lectures, find out what the answer is and tick the correct answer. और वीडियो को बार-बार देखिए, उत्तरों को करें और सही प्रश्न के उत्तर पर चिन्हित करें। This is a revision exercise. और अभी जो है हम उसको दोबारा से अभ्यास कर रहे हैं। We do the assessment so that you will get a chance to revise the entire portion and look at it once again. और ये केवल इसलिए किया जाता है कि आप जो है जो आपने पढ़ा है आप उसको दोबारा से देख सकें, याद कर सकें, उसको स्मरण कर सकें। So go through the video lectures, find out the correct answers and put the tick marks. और वीडियोस में वापस जाएं, सही उत्तर को खोजें और फिर वापस आकर सही उत्तर पर ही उसको चिन्हित करें। Okay, so all of it is multiple choice questions. that's it. So Okay. it's 50 multiple choice questions. You have to tick the correct answer. Thank you. और 50 प्रश्न होंगे, केवल आपको इतना बस करना है कि आपको केवल चिन्हित करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। Okay, all right. So now we will today begin with the later history of Israel. और आप जो है इजराइल के बाद के इतिहास के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। So this is the later history when the kings were ruling over Israel. और ये तब का इतिहास है जब इजराइल राज्य के ऊपर में राजा लोग शासन करते थे। So there are 6 Old Testament books which talk about the later history. और 6 पुराने नियम की पुस्तकें हैं जो राजाओं के इतिहास के बारे में चर्चा करती हैं। 1 Samuel and 2 Samuel, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, 1 Chronicles and 2 Chronicles, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, and then 1 Kings and 2 Kings. और पहला राजा और दूसरा राजा। Now let's look at what each of these books focuses on. और हो कि हम देखें कि ये हर एक पुस्तक किस बात के ऊपर में ध्यान केंद्रित करती है। 1 Samuel mainly focuses on prophet Samuel, Saul and David. और जो पहला सामुएल की पुस्तक है वो मुख्यतः शामूएल के जीवन के ऊपर में राजा साउल और उसके बाद में राजा दाऊद के जीवन पर ही ध्यान देती है। So 1 Samuel is focusing on these 3 persons. और पहला सामुएल की पुस्तक इन 3 लोगों के जीवन के ऊपर में नजर रखती है। 2 Samuel is mainly the political history of David. और दूसरा सामुएल दाऊद के राजनीतिक इतिहास के बारे में केवल उतना ही चर्चा करती है। 1 Chronicles is the religious history of David. और पहला इतिहास जो है दाऊद के धार्मिक
इतिहास के बारे में चर्चा करता है। So while Second Samuel is focusing on the political history of David, First Chronicles focuses on the religious history of David. और जबकि दूसरा सामुएल की पुस्तक जो है दाऊद के राजनीतिक इतिहास के बारे में चर्चा करती है, तो उसके धार्मिक इतिहास के बारे में पहला इतिहास जो है चर्चा करता है। Second Chronicles gives the religious history of the southern kingdom of Judah. और दूसरा इतिहास दक्षिणी यहूदा के राजाओं के धार्मिक इतिहास के बारे में चर्चा करता है। So the religious history from Solomon up to the time of Zedekiah is discussed in Second Chronicles. और सुलेमान से लेकर सिदकिय्याह के जीवन तक के जितना भी धार्मिक इतिहास है वो दूसरे इतिहास की पुस्तक के अंदर में वर्णन किया गया है। Finally, the political history of the northern and southern kingdoms is mentioned in Kings. और जो राजाओं की पुस्तक है उसके अंदर में उत्तरी और दक्षिणी राजाओं के जितने भी ऐतिहासिक पल हैं जो कि राजनीतिक हैं उनका चर्चा पहले और दूसरे राजा में किया गया है। So in First Kings, you have the political history from Solomon up to Ahab and Jehoshaphat. और पहले राजा के अंदर में सुलेमान से लेकर आहाब और यहोशापात तक के राजनीतिक इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। And then in Second Kings, you have the political history of Joram up to Hoshea of the northern kingdom. और दूसरे राजा के अंदर में योराम से लेकर Hoshea of the northern होशिया kingdom. तक में जितना भी राजनीतिक इतिहास है जो कि उत्तरी राज्य का था उसका वर्णन वहां पर किया गया है। And then regarding the southern kingdom, from Jehoshaphat up to Zedekiah, it's mentioned. और जो दक्षिणी राज्य है उसका यहोशापात से लेकर सिदकिय्याह के राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। Okay, so now you have a clearer idea of what is there in each of these historical books. और आपके पास में थोड़ा सा विचार होगा कि हर एक ऐतिहासिक पुस्तक के अंदर में किन बातों का इतिहास की चर्चा किया गया है। So now we know exactly what is the main focus in each of these historical और books. अब हमारे पास से ये विचार है कि हर एक इतिहास के बारे में किन पुस्तकों के अंदर में वर्णन किया गया है। So today we will look at First Samuel, Second Samuel, and First Chronicles. और आज जो है पहला सामुएल, दूसरा सामुएल और पहला इतिहास की पुस्तक को हम अध्ययन करेंगे। So mainly we will be talking about David. और मुख्यतः दाऊद के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। So in First Samuel, this is the situation when the book begins. और देखिए जब ये पुस्तक आरंभ की होती है तो उसकी परिस्थिति इस प्रकार से है। So at the beginning of First Samuel, we see that the entire land, promised land, has not been conquered. और पहले सामुएल की पुस्तक आरंभ में हम देखते हैं कि जो वायदे की भूमि है उस पर पूरी रीति से राज्य अभी स्थापित नहीं किया गया था। Because during the time of the judges, the people were not faithful to the Lord. They were unable to conquer the land. और न्यायियों के दिनों के अंदर में लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं थे। यही कारण था कि वो पूरे वायदे के देश को कब्जा नहीं कर पाए। And so also during the ending of the time of the judges, you have many of the Philistines coming and occupying the area, the land. और हम ये भी इस बात को भी देखते हैं कि न्यायियों के दिनों के अंदर में फिलिस्ती लोग जो थे वो बार बार चढ़ाई करके कई भागों पर अपने कब्जे को जमाए हुए थे। And these Israelites are unable to defeat the Philistines again and again. और इस्राएली लोग फिलिस्तियों को बार बार हरा भी नहीं पा रहे थे। So politically, the situation was bad for the Israelites. और राजनीतिक तौर पर देखें तो इस्राएलियों की परिस्थिति उस समय पर बहुत बदतर थी। Even spiritually, if you look at their condition, it was very, very bad. और यदि आत्मिक रीति से भी देखें तो उनकी जो परिस्थिति की स्थिति थी वो भी बहुत बुरी थी। Because at the beginning of the book of Samuel, you have the high priest Eli who is leading the people.
और क्योंकि पहले सामुएल की शुरुआत में आप महायाजक एली के बारे में पढ़ेंगे जो इस्राएली लोगों की अगुवाई कर रहा था And his two sons were not at all godly. और उसके दो सुपुत्र जो थे वो बिल्कुल भी परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं थे They were corrupt in many ways and they were also immoral in their conduct. और वो कई सारी चीजों में भ्रष्टाचारी थे नैतिक रीति से भी उनका जो चरित्र है वो बहुत खराब था And that is why the word of the Lord was not being heard. God was not speaking to them. और यही कारण था कि परमेश्वर का वचन नहीं सुना जा रहा था परमेश्वर उनसे बातें नहीं करता था And so throughout the entire land, no one was receiving a message from the living God. और पूरे देश के अंदर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो परमेश्वर से वचन को प्राप्त करता था And then Samuel enters into the scene. और उस समय पर दृष्टि में समुएल प्रवेश करता है And we are told in 1 Samuel 7:15-17. और देखिए पहला सामुएल उसका 7 का 1 Samuel 7:15-17. और 7 का 15 से 17 में हम पढ़ते हैं We are told that Samuel becomes Israel's leader all the days of his life. और हमें इस प्रकार से बताता है कि वो सामुएल अपने जीवन के हर एक दिन में इस्राएलियों के ऊपर में न्यायी बन गया And then in verse 16, we are told that he began to judge Israel. और 16 वचन इस प्रकार कहता है कि वो इस्राएल का न्याय करना उसने आरंभ किया So, in a way, Samuel was the last judge among the judges of Israel. और हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इस्राएल जाति के अंदर में जितने भी न्यायी हुए सामुएल उन सब में अंतिम न्यायी था And he also becomes the prophet of God. और उसके साथ साथ वो परमेश्वर का नबी भी कहलाया 1 Samuel 3:19-21. और पहला सामुएल 3 अध्याय 19 से 20 We are told in verse 20 that all Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel was attested as a prophet of the Lord. और वहां पर इस प्रकार से दान से बर्शिबा तक में रहने वाले सारे इस्राएली जान गए कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है And this is what verse 19 says about Samuel. और देखिए 19वां वचन जो है शमूएल के बारे में इस प्रकार कहता है It says, the Lord let none of Samuel's words fall to the ground. और वहां कह रहा है यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी So every prophecy that Samuel gave, it was a true prophecy. Not even one prophecy fell to the ground. और हर एक भविष्यवाणी जो शमूएल ने करी थी वो सब सत्य थी एक भी उसकी भविष्यवाणी जो है बिना पूरे हुए नहीं रही And so Samuel was the last judge and also the new prophet of God. और शमूएल आखिरी न्यायी भी था और उसके साथ साथ परमेश्वर का प्रथम नबी भी हुआ And in 1 Samuel 7 verses 3 and 4, पहला शमूएल 7 अध्याय उसका 3 और 4 वचन अगर हम देखें he commands all the Israelites to give up their foreign gods and idols. और उसने आदेश दिया पूरी इस्राएली मंडली को कि अपने मध्य में से पराये देवी देवताओं को दूर कर दें And we are told in 1 Samuel 7 verse 4, और पहला शमूएल 7 उसके 4 में वो कहता है so the Israelites put away their Baals and Ashtoreths and served the Lord only. तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और असरोत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे So now finally, after the dark period of the time of the judges, now finally the people have come back to God. और देखिए एक लंबे अंधकार में समय के बाद में न्यायियों के राज्य के बाद में इस्राएली लोग परमेश्वर के पास में वापस से लौट कर आ रहे हैं And if you remember in the book of Judges, 4 times this is the declaration which is made in the book of Judges. और यदि आपको याद होगा तो न्यायियों की
पुस्तक के अंदर में एक घोषणा बार बार 4 बार किया गया है। There was no king in Israel in those days. और उन दिनों में इस्राएल के अंदर में कोई राजा नहीं हुआ करता था। Everyone did as they saw fit. और हर एक ने जिसकी आंख में जो भला लगा उसने वैसा ही किया। And now finally, God is going to bring in a new period of time और अब परमेश्वर अंततः उन लोगों के मध्य में एक नए समय काल को आरंभ करने जा रहा है। when a new king will be leading the people, और जहां एक नया राजा अपने लोगों की अगुवाई करेगा and he is going to lead the people in the ways of God. और वो उन लोगों को परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई करेगा। So the time of the no king is now over. Now a king is going to step in and he will lead the people in God's ways. और बिना राजा का समय जो है अब समाप्त हो गया। अब राजा का समय आरंभ हो रहा है जो अपने लोगों को परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई करेगा। 1 Samuel chapter 4 gives us a little bit of background. और देखिए पहला शमूएल 4 अध्याय हमें इसके बारे में एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। Okay, so now this is before the king is established, a little before that. और ये एक राजा के स्थापित करने के थोड़े से पहले की पृष्ठभूमि हमें 4 अध्याय में प्राप्त होती है। Hophni and Phinehas, the sons of Eli, are leading the people. और देखिए जो फिनिहास और होफनी है जो एली के बेटे हैं वो इस्राएली लोगों की अगुवाई करते थे। And now the Philistines are waging a war against Israel. और फिलिस्ती लोगों ने इस्राएलियों के विरुद्ध में युद्ध आरंभ किया। These two evil sons, they know that God is not going to defend them. और ये दोनों दुष्ट बच्चे जो जानते थे कि परमेश्वर उनके ऊपर निर्भर नहीं है। They knew that God will not give them success because they have been living in sin. और वो इस बात को जानते थे कि परमेश्वर सफलता नहीं देगा क्योंकि वो लोग पाप में जीवन जी रहे थे। And so they think if we take the ark of God into the battlefield, then God will be forced to help us. और उन लोगों ने ऐसा सोचा यदि हम परमेश्वर के वाचा के संदूक को युद्ध भूमि में ले जाएं तो परमेश्वर जोर जबरदस्ती उनकी सहायता करेगा। But then God decides not to help them, even though the ark has been taken into the battlefield. और भले ही परमेश्वर के वाचा का संदूक की युद्ध भूमि में ले जाया गया लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी सहायता नहीं की। God, in fact, allows the ark to be taken by the Philistines. The Philistines capture the ark and take it away. और परमेश्वर ने तो शत्रुओं को अनुमति दिया कि वो वाचा के संदूक को इस्राएलियों से लूट कर ले जाएं। And so the Philistines, they take this ark and they put it in their temple. और उन्होंने फिलिस्तीयों ने इस वाचा के संदूक को लिया और जाकर अपने मंदिर के अंदर में रख दिया। In those days, when a king would conquer another land, और उन दिनों में यदि एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर में जीत हासिल करता था, he will take the chief gods of the defeated kingdom and go and put them in his temple. और वो उस हारे हुए राजा के देवी देवताओं को उठाकर ले जाकर अपने मंदिर में रख दिया करता था। And he will declare that his God is greater than these other gods which have been defeated. और वो इस बात की घोषणा करता था कि उसका जो देवी देवता है वो बड़ा है और शत्रु राजा के देवी देवता जो हल्के हैं सस्ते हैं वो हार गए हैं। And so with that idea, the Philistines, they take the ark of the covenant to the city of Ashdod. और देखिए उसी विचार के साथ में फिलिस्तीयों ने वाचा के संदूक को अश्दोद के मंदिर में ले जाकर रख दिया। But the living God is superior to all these idols. और लेकिन जीवित परमेश्वर इन सारी मूर्तियों से वरिष्ठ परमेश्वर है। And so the chief idol of the Philistines, Dagon, it loses its head, it loses its hands and legs. और देखिए दागोन देवता की जो मूर्ति है क्योंकि परमेश्वर के वाचा का संदूक उसके मंदिर में रखा था, एक बार गिरा तो मुंडी टूट गई, दूसरी बार गिरा तो उसके हाथ पैर भी टूट गए। So God proves to these Philistines that he is far superior to their gods. और परमेश्वर ने इन फिलिस्तीयों को इस बात को सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर उनके देवी देवताओं से बहुत
वरिष्ठ है। He did not give the Israelites success in the war because their leaders were living in sin. और इस्राएलियों को युद्ध में सफलता इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस्राएलियों के जो अगुवे थे वो पाप में जीवन को जी रहे थे। However, he has not lost any of his power. He is still the Almighty God. और फिर भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ में कोई कमी नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And so God releases a plague upon the entire town of Ashdod. और परमेश्वर पूरे के पूरे देश के अंदर में एक महामारी को फैला देता है। And the Philistines are so scared that they pay a tribute to the living God. और वो लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख में बलिदान करते हैं। You know, usually it's the defeated kings who pay a tribute to the king who has won. और लेकिन ऐसा हुआ करता था कि जो हारा हुआ राजा है वो जीते हुए राजा के सामने उसके उपलक्ष्य में, उसके सम्मान के उपलक्ष्य में उसे कुछ चढ़ाए। However, in this case, the Philistines are the ones who give a tribute to the living God. और लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फिलिस्ती लोग जो है जीवित परमेश्वर के सम्मान में बलिदान चढ़ा रहे हैं। Okay, so they make, tumors made of gold and they give it as a tribute to the living God. और उन्होंने तो सोने की गिलटियों को बनाकर परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ा दिया। And so the Ark of the Covenant returns to Israel on its own. और इस्राएल को उन्होंने स्वयं उस वाचा के संदूक को वापस कर दिया। God clearly declares that he is the ruler of Israel and he will do what he wishes. और परमेश्वर यहाँ स्पष्ट रीति से इस बात की घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर ही है जो इस्राएल पे राज्य करता है और उसकी ही मर्जी है, वो जो चाहता है वो करता है। After this incident, the people of Israel are kind of afraid. और इस घटना के बाद में इस्राएल के लोग जो हैं वो भय में रहने लगे। They think these priests who were leading us were sinful and God did not give us success. और लोग इस प्रकार सोचने लगे कि ये याजक हमारी अगुवाई कर रहे हैं वो पाप में जीवन जी रहे हैं और हमारा परमेश्वर जो हमें अगुवाई नहीं करता है। And because of these leaders, we are not having success. और वो इस प्रकार सोचते हैं कि इन अगुवों के कारण हमारे जीवन के अंदर में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही। We lost the battle because of the sinful leaders Hophni and Phinehas. और होप्नी और फिनेहास के पाप में जीवन के कारण हमने युद्ध में हार का सामना किया। And so they say to Samuel, we want to have a king like all the other kingdoms. और इसीलिए उन्होंने शामुएल से कहा कि जैसा दूसरे राज्यों में राजा है हमको भी राजा चाहिए। 1 Samuel 8 verses 1 to 7. और पहला शमूएल 8 अध्याय इसका 1 से लेकर 7 वचन तक। In those verses they say, we also want to have a king just like all the other nations. और देखिए इन वचनों के अंदर में अगर आप पढ़ेंगे तो वो लोग कहने लगे कि जैसा दूसरे राज्यों के अंदर में राजा होता है हमें भी हमारे लिए एक राजा चाहिए। And this is the reply which Samuel makes in verses 6 and 7. और 6 और 7वें वचन में देखिए कि शमूएल जो है इस जवाब को दे रहा है। 1 Samuel 8 verses 6 and 7 if you can read out. और पहला शमूएल 8 अध्याय इसका 6 और 7 वचन पढ़ सकते हैं। But when they said, give us a king to lead us, this displeased Samuel. So he prayed to the Lord, and the Lord told him, listen to all that the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as their king. Amen. So here, when they ask for a king, Samuel is displeased. He knows that this is not a correct request. और जब उन्होंने एक राजा की मांग की तो शमूएल जो है इसे प्रसन्न नहीं हुआ, वो जानता था कि ये सही निवेदन नहीं है। And so then God says to him, they have not just rejected you as a prophet, they have rejected me as their king. और परमेश्वर ने शमूएल से कहा तुझे नबी होने का इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरा अपने ऊपर से राजा होने से इनकार किया है। And this is what
In 1 Samuel 8, verses 19 and 20, और पहला शमूएल 8 उसका 19 और 20 वचन, this is what the people say. और लोगों ने इस प्रकार से कहा, If you can read out verses 19 and 20. 19 और 20 पढ़ सकते हैं। But the people refused to listen to Samuel. No, they said, we want a king over us. Then we will be like all the other nations, with a king to lead us and to go out before us and fight our battles. You see, in their minds, they are thinking Hophni and Phinehas, they were priests, they didn't know how to lead us. But if we had a king, he would know how to lead us into battle. और देखिए कि उनके मन में इस प्रकार का विचार है कि होप्नी और फिनेहास जो अगुवे हैं, वो उन्होंने सही से अगुवाई नहीं किया। यदि हमारा राजा होता तो वो हमारे आगे आगे चलकर युद्ध में हमारी अगुवाई करता। So this is what it says in 1 Samuel 10:19. और पहला शमूएल 10:19 अगर हम पढ़ें, This is what Samuel says to the people in reply. और शमूएल प्रति उत्तर में इस्राएली लोगों से ऐसा कह रहा है। Yeah, 10:19, if you can read out. और 10:20, But you have now rejected your God, who saves you out of all your disasters and calamities. And you have said, no, appoint a king over us. So now present yourself before the Lord by your tribes and clans. So here Samuel is telling them, it is God who saves you out of all your disasters and calamities. और शमूएल कह रहा है कि ये वो परमेश्वर है जिसने तुम्हें सारी विपत्ति और कष्टों से छुड़ाया था। You want a king, but it's actually it is God who delivered you up to now from disasters and calamities. और तुम लोग एक राजा की मांग कर रहे हो, लेकिन ये परमेश्वर ही था जो अब तक तुम्हें सारी विपत्ति कष्टों से छुड़ाता आ रहा है। So they are asking for the king for the wrong reasons. और वो लोग एक राजा की मांग जो कर रहे हैं वो गलत कारणों के लिए कर रहे हैं। They are looking for a king because they think the king will protect them. और वो एक राजा को इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि एक राजा उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। And then this is what Samuel says in chapter 12, verses 17 and 18. और देखिए पहला शमूएल 12 उसके 17 और 18 में शमूएल इस प्रकार कह रहा है। He says that God will prove to them that their request is wrong. और वो कहता है कि परमेश्वर इस बात को सिद्ध कर देगा कि उनका निवेदन जो उन्होंने किया वो गलत है। If someone can read out verses 17 and 18 of chapter 12. Is it, Yeah. is it not wheat harvest now? I will call on the Lord to send thunder and rain, and you will realize what an evil thing you did in the eyes of the Lord when you asked for a king. Then Samuel called on the Lord, and that same day the Lord sent thunder and rain. So all the people stood in awe of the Lord and of Samuel. So Samuel says, you people are getting ready to reap the wheat harvest. और देखिए शमूएल कह रहा है तुम लोग गेहूं की कटनी काटने के लिए तैयार हो। But God is going to send thunder and rain and destroy your crop. और वो कहता है कि परमेश्वर जो है तुम्हारी फसल के ऊपर में बारिश और अग्नि भेज कर उसकी फसल नाश कर देगा। Then you will realize it's not king who can protect you, it's the Lord who protects you. और जब तुम इस बात को पहचान लोगे कि ये राजा नहीं जो तुम्हारी सुरक्षा कर सके, ये परमेश्वर ही है जो तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। So just as Samuel prophesied, rain and thunder comes down and the crop is destroyed. और जैसे शमूएल ने भविष्यवाणी की थी वैसे ही गर्जन के साथ बारिश हुई और पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई। It was always God's plan to give the people a king. और ये परमेश्वर की हमेशा से योजना रही थी कि वो लोगों को एक राजा प्रदान करे। But he wanted the people to ask for a king with the right motive. और लेकिन वो चाहता था कि लोग सही उद्देश्य के साथ में एक राजा की मांग करें। Here, the people were asking for a king with the wrong motives. यहाँ लोग राजा की मांग तो कर रहे हैं लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो गलत है। They were hoping that the king will lead them into battle. They were hoping that the king will protect them. और वो लोग इस बात की आशा कर रहे थे कि उनका
उनका राजा लड़ाई में अगुवाई करेगा, उनका राजा लड़ाई में उनको विजय दिलाएगा। But God wanted them to have a king for a different reason. और लेकिन परमेश्वर उन्हें राजा को देना चाहता था, लेकिन एक अलग उद्देश्य के साथ में। What was God's purpose for a king over Israel? परमेश्वर का इस्राएल को राजा प्रदान करने का क्या उद्देश्य था? This is what it says in Deuteronomy 17, verses 14 and 15. और व्यवस्था विवरण 17 उसके 14 और 15 में इस प्रकार से लिखा है, If someone can read out. कोई भी पढ़ सकते हैं। Deuteronomy 17, 14 and 15. When you enter, 14-15 sorry. Yeah. When you enter the land, the Lord your God is giving you, and have taken possession of it and settled in it, and you say, let us set a king over us like all the nations around us. Be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses. He must be from among our fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. God says a day will come when you will ask for a king. और परमेश्वर कह रहा है कि दिन आएगा जब तुम एक राजा की मांग करोगे, On that day, choose the king the Lord chooses. और उस दिन में आप वो राजा को चुनो जो परमेश्वर जिसको चुनता है। So there are some instructions which God gives about what kind of a king should be chosen. और परमेश्वर यहाँ पे कुछ निर्देशों को दे रहा है कि किस प्रकार के राजा को परमेश्वर चुनेगा। So Deuteronomy 17, verses 16 to 20. और व्यवस्था विवरण 17 उसके 16 से 20 में God gives various instructions on how the king should be. और परमेश्वर यहाँ पर कई सारे निर्देशों को दे रहा है कि एक राजा किस प्रकार का होगा। So in verse 16, God says, the king must not acquire great numbers of horses for himself. और 16वें वचन में परमेश्वर ने कहा कि राजा अपने लिए कई सारे घोड़ों को ना रखे। In verse 17, God says that this king must not take many wives. और 17 में कहता है ये राजा कई स्त्रियों को विवाह करके ना रखे। He also says that the king must not accumulate large amounts of silver and gold. और वो ये भी कह रहा है कि ना वह अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए। Why does God give these instructions regarding the king? और परमेश्वर ने ये सारे निर्देश जो है एक राजा के लिए क्यों दिए हैं? Because you see, the kings in those days depended upon horses, upon gold, upon political alliances for their strength and victory. और क्योंकि यदि आप देखेंगे उन दिनों में राजा लोग अपने घोड़ों पे अपने सोना चांदी और राजनीतिक संबंधों के ऊपर में ज्यादा भरोसा रखते थे, अपने राज्य को बनाए रखने और लोगों के ऊपर में प्रभुता करने के लिए। The reason they would marry so many wives is so that they can form an alliance with the other countries. और वो क्यों इतनी ज्यादा शादियां करते थे? ताकि वो दूसरे देशों के साथ में रिश्तों को बना सके, उनके साथ में व्यवहारिक बातों को कर सके। So the king of one land will marry a bride from another land to form a political partnership. और एक देश का राजा दूसरे देश की कन्या के साथ विवाह इस प्रकार से करता था ताकि राजनीतिक संबंध उनके बने रहे। And Solomon breaks all these rules later, if you remember. और यदि आपको ध्यान होगा तो सुलेमान ने सब हद पार करके सारे नियमों को तोड़ डाला। He collects a lot of horses when God said, don't collect horses. और परमेश्वर ने जब कहा कि घोड़ों को इकट्ठा ना करना, उसके पास में बहुत सारे घोड़े उसके इकट्ठा थे। He marries a lot of foreign women, even though God said, don't make alliances like that. और जब परमेश्वर ने इनकार किया कि इस प्रकार का संबंध नहीं करना है, तब भी सुलेमान ने कई अन्य देशों की कन्याओं के साथ में विवाह किया। He thought that will make him strong. और उसने इस प्रकार सोचा कि उससे वो एक बड़ा मजबूत राजा बन जाएगा। But here in Deuteronomy 17, God instructs and says, let the king not have any of these things. और लेकिन 17 में जब देखें तो परमेश्वर कह रहा है कि राजा इस प्रकार की चीजों को अपने लिए अर्जित ना करे। On the other hand,
the king of the living God should have this, verses 18 and 19. अगर 18 और 19 में पढ़ेंगे तो एक जीवित परमेश्वर के राजा को इस प्रकार का होना चाहिए, उसकी चर्चा है। 18 and 19, if you can read out. 18 और 19 पढ़ लें। When he takes the throne of his kingdom, he is to write for himself on a scroll a copy of this law, taken from that of the Levitical priests. It is to be with him, and he is to read it all the days of his life, so that he may learn to revere the Lord of his God and follow carefully all the words of this law and these decrees, Verse 20 also. and not consider himself better than his fellow Israelites, and turn from the law to the right or to the left. Then he and his descendants will reign a long time over his kingdom in Israel. So God wanted a king in Israel who will be very different from other kings. और परमेश्वर इस्राएल में एक ऐसा राजा चाहता था जो दूसरे राजाओं से बिल्कुल भिन्न हो। While the other kings are focusing on horses and political alliances, this Israelite king should be focusing on the law of the Lord. और देखिए, जबकि बाकी राजा घोड़ों पर, राजनीतिक संबंधों पर, धन पर भरोसा किया, उस पर विचार कर रहे हैं, इस्राएल के राजा को परमेश्वर पर विचार करके अलग रीति का राजा होना है। It says in verse 19 that this king should read the law of the Lord all the days of his life and follow carefully all the words of this law. अगर 19 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और विधियों की सारी बातों में मानने में चौकसी करना सीखे। So God is basically telling the Israelite king will be a man who has got only limited resources and limited amount of money. और परमेश्वर इस बात को कहने का प्रयास कर रहा है कि इस्राएल का जो राजा होगा, उसके पास के जो आर्थिक स्रोत हैं वो बहुत सीमित होंगे, सीमित ही उसका सामर्थ्य होगा। So you see, his dependence is not going to be on his wealth and his horses. His dependence will be on the Lord. और उसकी निर्भरता उसके घोड़ों और रुपयों पर नहीं, लेकिन उसकी निर्भरता परमेश्वर पर होगी। This is what it says in Psalm 20, verses 6 to 8. और भजन 20 उसके 6 से 8 में जब हम पढ़ते हैं, In Psalm 26 to 8, it's, David the king is talking, and this is what he says. और देखिए दाऊद राजा भजन 20 उसके 16 से 18 में बात कर रहा है, और वो इस प्रकार से कह रहा है। He says, the Lord gives victory to his anointed. और वो 6 से 8 में कहता है कि परमेश्वर ही अपने अभिषिक्त को जय दिलाता है। So in verse 7, David says, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. और भजन 20 उसके साथ में दाऊद इस प्रकार कहता है कि कुछ तो रथों का, कुछ घोड़ों का भरोसा करते हैं, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा करते हैं। So in his early days, David realized that he is a very different king from the other kings, the other nations. और राजा दाऊद ने अपने जीवन के आरंभ के अंदर में ही इस बात को पहचान लिया कि हम जो राजा हैं, दूसरे देशों के राजाओं से बिल्कुल अलग रीति के राजा हैं। So this Israelite king is not going to trust in chariots or horses. He will trust in the name of the Lord. और इस्राएल का राजा जो है वो घोड़े और रथों पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर के नाम पर भरोसा करेगा। And so in 2 Samuel 8, 3 to 4, this is what we see. और देखिए दूसरा सामुएल 8 उसके 3 और 4 में हम इस बात को देखते हैं। It talks about how David defeats some very important kings. और हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार दाऊद ने कुछ विशेष राजाओं को किस प्रकार से हराया। And it says in 2 Samuel 8, verse 4, that David captured 1,000 chariots. और दूसरे सामुएल 8:4 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, दाऊद ने 1,000 रथों पर कब्जा कर लिया। So which means now he has control of the horses which were running those
1,000 chariots. और देखिए इसका मतलब है कि अब वो घोड़े जो उन रथों को अगुवाई कर रही है, चला रहे हैं, दाऊद का कब्जा उनके ऊपर में है। What does David do with all those horses? Does he go and store them in his, in his barns? और दाऊद ने क्या किया, क्या उन सभी घोड़ों को लेकर अपने घोड़ों की घोड़शाला में रख लिया? It says he hamstrung all but 100 of the chariot horses. और वो कहता है कि उसने उन सभी की पीछे की नस, घुटनों के पीछे की नस कटवा दी, परंतु 100 रथ के लिए घोड़े बचा रखे। He kept only 100. All the other horses, he has them hamstrung. और देखिए उसने केवल 100 घोड़ों को बचाए रखा, लेकिन बाकियों की उसने जान की नस को कटवा दिया। Because once the horse is hamstrung, it can no longer be used in war. और यदि उनकी घुटनों के ऊपर यानी कि जान की नस काट दी जाए तो वो युद्ध के काम के घोड़े नहीं रहते हैं। You can only use them for transportation. Maybe you can use them for agriculture, but not for war. और आप केवल यातायात के साधनों के लिए, सामान ढोने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे घोड़ों का युद्ध में उपयोग नहीं किया जा सकता। Because in his early days, David's confidence was not on the horses, it was on the name of the Lord. और क्योंकि आरंभ के दिनों के अंदर में दाऊद का भरोसा घोड़ों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम पर था। Okay, so we see in 1 Samuel how the king was established and what God's purposes were for a king. और हम पहले सामूएल में देखते हैं कि किस प्रकार एक राजा को स्थापित किया गया और क्या उद्देश्य था, वो भी हम देखते हैं। Okay, and we see that Saul fails to be the kind of king that God wanted. और हम इस बात को भी देखते हैं कि राजा शाऊल को जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा होने में हम उसको असफल देखते हैं। On the other hand, David proves to be a king whom God can approve. और दूसरी तरफ हम दाऊद को देखते हैं कि ऐसा राजा के रूप में जिसको परमेश्वर सिद्ध कर रहा है, कह रहा है कि ये मेरे समान है। So Saul is a dishonorable king who tries to kill David on many occasions. और राजा शाऊल एक अनाज्ञाकारी राजा जिसने दाऊद को मारने के लिए कई बार प्रयास किया। David, on the other hand, he honors God by sparing Saul's life on 2 occasions. और दूसरी तरफ देखें तो राजा दाऊद ने 2 बार राजा शाऊल को मौका देकर मारने से छोड़कर परमेश्वर को आदर दिया। So Saul was a dishonorable king who did not represent Yahweh correctly. और शाऊल जो है एक अनाज्ञाकारी जिसने यहोवा परमेश्वर को सही रीति से आदर प्रदान नहीं दिया। On the other hand, David is an honorable king who tries to honor God. He even spares his enemy to honor God. और दूसरी तरफ देखें तो राजा दाऊद है जिसने अपने शत्रु को 2 बार जीवन दान देकर परमेश्वर को आदर नहीं है जीवन को जिया है। Saul is a king who kills an entire town of priests, the town of Nob. और हम देखते हैं राजा शाऊल एक ऐसा राजा था जिसने पूरे याजकों के गांव को ही नाश कर दिया, सारे याजकों को कत्लेआम कर दिया। In 1 Samuel chapter 22, Saul kills an entire town of priests. और पहला सामुएल उसके 22वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा गांव जो कि याजकों का था, शाऊल ने सबको मार दिया। Because these priests were supporting David. और क्योंकि ये याजक लोग दाऊद को सहयोग करते थे। On the other hand, one priest who is left alive, he goes to David and David protects him. और हम देखते हैं दूसरी ओर जब एक याजक उनके मध्य में बच जाता है, वो भागकर दाऊद के पास जाता है और दाऊद उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। And so we see that because David honored God, God gave him victory over all the Philistines. और हम दूसरी ओर इस बात को भी देखते हैं कि
दाऊद ने परमेश्वर को सम्मान आदर दिया, परमेश्वर ने उसके इजाफे में हर एक लड़ाई में दाऊद को जय दिलाई। So we see in 2 Samuel chapter 5 that David defeats all the Philistines. और दूसरा शमूएल 5वें अध्याय में अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है दाऊद ने सारे फिलिस्तियों को हरा दिया। On the other hand, Saul, throughout his life, he struggles with the Philistines. He's never able to overcome them completely. और दूसरी ओर देखें तो राजा शाऊल जीवन भर फिलिस्तियों के साथ मुठभेड़ ही करता रहा, पूरी जीवन भर वो फिलिस्तियों को पूरी रीति से परास्त नहीं कर पाया। So these main important points about kingship is what is discussed in 1 Samuel. और राजा के बारे में ही मुख्यतः पहले सामुएल के अंदर में चर्चा की गई है। Now, when we come to 2 Samuel, there we have more about the history of what happened in David's life. और यदि हम जब दूसरे शामिल के अंदर में आते हैं तो यहाँ दाऊद के जीवन के अंदर में जो कुछ भी घटा उसका इतिहास इसके अंदर में हम पाते हैं। Let's look very quickly at the structure of 2 Samuel. और आइए हम बड़ी जल्दी से दूसरे शामिल के ढांचे को देखें। In the first 10 chapters, we see how David rises to power, how he is established on the throne. और पहले 10 अध्यायों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा के रूप में दाऊद को स्थापित किया गया, उसने अपने राज्य को स्थापित किया। Okay, we'll continue after the break. Yeah. और हम ब्रेक के बाद इसे आगे जारी रखेंगे। Okay.